ऑल राइट, वेलकम मिस्टर गुरसिमरन खंबा। एक्चुअली ब्रो, मेरे को स्टोरी ये वाली बोलनी है कि हाँ 2019 हम्म। जब ये टेस्ट हमने शुरू करा था, वन ऑफ द फर्स्ट 10 एपिसोड्स में वी हैड कॉल्ड खंबा एज अ गेस्ट। ठीक है, Yeah. और खंबा पहुंच गए हमारे साथ प्रॉपरली स्टूडियो पे। अरे ब्रो कैसा है, क्या है, बस कर रहे चिल। बट वो दिन हमारे लाइट और साउंड वाले दोनों ने हक दिया है। So they have had to go get whatever other Oh equipment which was taking yeah. time, और खंबा उधर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। फिर उसको बोला कि भाई अभी 2 घंटा, अभी मेरे को जाना है, तो अनफॉर्चुनेटली तभी नहीं कर पाए। हाँ, और बट उसके बाद तुम 220 एपिसोड के लिए भूल गए। फ्रॉम फ्रॉम टॉप फ्रॉम टॉप 10 गेस्ट टू गेस्ट नंबर 240। थैंक्स मैन। नहीं, वो बीच में कुछ पैंडेमिक वगैरह हो गया था तो नहीं, लेकिन अपना बीच में भी बात चल रही थी, कुछ ना कुछ डेट वेट ऊपर नीचे हो रहा था। बट ग्लैड टू फाइनली हैव यू ब्रो। तो या अभी तो Yeah, आ गया man. है, बट तेरे साथ बात करने के पहले करते हैं एपिसोड शुरू। Hello and welcome to another episode of the Internet Set. So, a show where we take random instant weird absurd facts that develop puzzle stories and we talk about it. And today we are going to do all of this with Mr. Gursimran Khamba. तो मेरे भाई, पहले बता तू है कैसा, किधर है, क्या कर रहा है? सब बता। 5 साल में तूने क्या क्या किया? 5 साल. Let's. तो 240 episodes worth of content. Come on. 240 Yes. episodes worth of content. नहीं यार, it's been really good. I'm just coming off one tour now. एक्चुअली वही, तुम्हें पता ही है मेरा कंटेंट इंटरनेट पे मैं डाल नहीं सकता हूँ, तो अभी ऐसे लग रहा है कि सीक्रेट अंडरग्राउंड क्लब्स में जो कर लेते हैं, तो हाँ। इट्स नाइस बिकॉज विद द ऑडियंस आल्सो आई हैड टू नाउ अनाउंस कि गाइस प्लीज, तुम्हें पता है मैं रील्स तो डाल नहीं सकता हूँ इस मटेरियल की, तो हाँ। लेट्स जस्ट कीप इट अ सीक्रेट। तो अब प्रॉब्लम ये है बिकॉज टिल यू पुट रील्स एवरीबडी थिंक्स यू आर डेड। Yes. Dead. So Yeah. it is like, so now I'm trying to see, okay, थोड़ा करते हैं, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा रील्स वील्स डालते हैं, बट हाँ। मतलब वही लगता है कि इसलिए थोड़ी कॉमेडियन बने थे कि रील काट के सोच रहे हो कि यार ये 30 सेकंड किसी को पसंद आ जाए, लाइक फक, बट दैट्स बीन अप मैन, वही चल रहा है, so been touring, that's कैसे been, गए? How did the shows go? shows went really Hmm. well except Surat. Oh. Surat, Oh. क्यों, क्या Surat, पसंद? I felt really bad because in the front row there were two kids who I don't know, Oh. somebody must have, no, not kids like 14, matlab, Okay. small Okay. one. Ah, But Because we've had an 8-year-old in our show. Yeah. It was very And- weird. And we told the mom that listen, you know what this is. The show is called Uncensored. Please अपने छोटे से बच्चे को शो में मत लेके आओ. No, don't worry. मतलब ठीक She है. doesn't By the time the understand show, anything. father must be doing all the same conversations at home, I'm guessing, right? Like, Yeah. you are not teaching a word the father hasn't uttered already, perhaps. by the end of our show, poor thing, the girl grew up. Yeah. तुझे She's पता like, है ये क्या था? तुझे पता है true story, my niece, I think she was a year and a half or something when we did the roast. And because my sis couldn't find a babysitter, so she had to get my niece to the roast. And then we were like, oh my god, there's going to be 4,000 people, what's going to happen, and what if she cries in the middle, etc., etc. But we didn't have any space, so we gave her those Noise cancellation. earmuffs so that she wouldn't wake up. She has slept through the entire 2 hours. Wow. Okay, she's Wow. literally slept like a baby, and वही हम कभी कभी डिस्कस करते हैं घर में कि one day she will grow up and we'll be like, पता है तुम इस इवेंट पे थे, आइकॉनिक इवेंट पे, और सो गई थी throughout सो the गए। event. बट Crazy. सूरत में क्या हुआ, सूरत में there was, I think किसी ने उनको बोल दिया होगा, अरे वो नहीं होता कि people who are not familiar with your work, but they are like, अरे वो AIB वाला कुछ तो था, so one of those people. तो मेरे को इतना बुरा लगा क्योंकि आधे मेरे जोक्स उनको बाउंसर जा रहे, आधे उनको फनी नहीं लग रहे, तो then in the middle of it, and plus they're in the front row, then the guy just looked at his watch. Oh shit. Oh, I was no. like, so I just stopped the show. I was like, listen, I don't want to ruin your Saturday night, right? Anyway, you're in Surat, you can have cheese, max, whatever, right? So just, if you all want to leave, I don't want to make you feel bad. We are both making each other feel bad. So they were like, Yeah. oh, what? I said, yeah, please. So then they left early and everybody had a better time after that. Oh. I was like, Khamba, you know what you've done? This is that cool teacher move.
You know, Yeah. it is the, hey, listen, I don't want to do this. You don't want to do this. Why don't you just leave the class? But bro, tell me, ये जो अभी स्टैंड अप कर रहा है ऑलमोस्ट कितने 4-5 साल के बाद? नहीं, so I was touring about 3 years ago. Then I took a break हाँ. because I wanted to write some movies which were in my Okay. head. And then I went back on tour now with like 30 minutes of new stuff because I felt like I need to get it. देख तेरे को पता ही है कि पिक्चर वगैरह जो लिखते हो कुछ बोल तो सकते नहीं हो आज का एनवायरनमेंट तुम्हें पता ही है ना. तो 1 साल वो करने के बाद Yes. मैं इतना भरा बैठा था कि मेरे को ये भी बोलना है, मेरे को ये भी बोलना है, मेरे को सिस्टम से ये भी निकालना है. तो देन आई कहाँ करें. तो फिर मैं चला जाता था स्टेज पे एंड स्टेज पे जस्ट फुल वॉमिट. So that was very good. Like it was very good for my sanity. Then I would take out my bhadas and then you come back and then you write whatever nice, love, romantic drama, family. This thing, young Khamba. adult. तूने भी राइटिंग में सुना बहुत भाई, मैं गुस्सा हो गया मैं यंग एडल्ट से. But this thing now about the difference between writing and stand-up, like it's the thing about validation and how quickly you get it in stand-up versus writing. Because writing, you write, it takes a long while to write, then it gets made, then you wait, and then people don't even give you validation, they give the actors. हाँ, बिल्कुल. Yes. अरे वो तो सर राइटिंग के बीच सेश तो अपन चालू हो गए तो किसी को नहीं काम मिलेगा. वरुण को भी फिर कल एक्टिंग नहीं मिलेगा, वो भी नहीं बोल सकते. मुझे क्यों तोड़ रहे हो बीच में? बस बोल रहा हूँ. बट वही चल रहा है ब्रो. बट हाउस द राइटिंग गोइंग? मूवी शोज क्या लिख रहा है यार? लास्ट ईयर वाज टेरिबल बिकॉज़ नोबडी न्यू व्हाट द फक विल वर्क एंड उस तरह अब मैं मूवीज के नाम नहीं ले सकता. कुछ बड़े अतरंगी ऑफर आए थे फ्रेंचाइज. And this year is terrible because everybody knows everything that will work. एंड अभी मेरे साथ तो रूम्स में डायरेक्टली लोगों ने बोला है, सर आपके पास कोई मर्डर और या थ्रिलर है तो ले आए, वो तो हम बना देंगे. कॉमेडी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं आता है. Oh. मैंने क्या सुना पता है? मैंने क्या सुना, कह रहा है सर आपके पास कुछ मर्डर है तो ले आए. घर पे बड़ा मर्डर भाई. True crime. इसने 4 के True crime documentary. But it's last year I think was hard for everyone who was writing because last year in general industry की बैंड बजी हुई थी. And वो बड़ा फनी लगता था. एक दो तो मैं प्लेटफॉर्म्स का चल पता चल ही जाएगा तुम्हें. वही ये 4 प्लेटफॉर्म है. वही 4 इसलिए तो it's such a dance, right? Like for example मुझे पता है कि मैं शो पिच करने आया हूं, पर मुझे ये भी पता है कि you as the executive are going to get fired 2 weeks later. Because some merger is going to happen. You don't know who your boss is. I have read today morning only in the paper that you have new boss, right? So, but you still have to do the dance. Yeah, you know, we can make this and then 6 months later we'll think about it. And mentally I'm thinking, तुझे अगले महीने का रेंट नहीं देना आ रहा है. तू कहां से ग्रीन लाइट कर रहा है मेरा शो? So this dance is very fascinating. I love going into those rooms when you have to, pretend as if you are looking for some fucking high art achievement. Right. Dude, also those meetings, that sort of that agreement that you have to do when you come in with a show, okay, and they hear it and they're like, beautiful, amazing, super, but can we do this as a movie? Yeah. Yes. And then you sit there going like, yeah, I can look into it. Bro, at this point of time, even if they say, yeah, this great script, can we make it into a reel? मैं उसके लिए भी हाँ बोलूं क्योंकि चूते हाँ बोलते ही नहीं है. 1.5 साल हो गया मैंने सीरीज लिख दिया है, बाइबल रेडी है, ठीक है. तुम जाते हो मीटिंग के लिए, बैठे तू प्लेटफॉर्म के साथ और प्लेटफॉर्म ऐसे पूरा देख के नरेशन सुन लिया और फिर 15 दिन 20 दिन नो रिस्पॉन्स. फिर तुम भीख मांग रहे हो कि भाई बताओ तो सही, हाँ ना फक ऑफ कुछ तो बोलो. फिर आता है 1 पेज का इनका फीडबैक ऑन व्हाट योर शो इज अकॉर्डिंग टू देम. एंड ब्रो मेरे को इतना लाइफ में कभी गुस्सा नहीं आया क्योंकि मैं वो पढ़ता हूँ और फिर मैं आई वांट टू रिप्लाई दैट प्लीज गो टू योर ओन प्लेटफॉर्म एंड सी दिस 10 shows and tell me how the fuck did you green light those. अगर तेरे को मेरे शो से इतने प्रॉब्लम है, fair ना प्रॉब्लम होना चाहिए. Sir, it is called a bribe. It is called a 10% Kickback. ले भाई, मेरे पूरे फीस तू ले ले, सिर्फ शो डालते. वो इतना मेहनत किया है यार. Thakur, you know something? This is the difference between when an actor gets rejected at an audition and a writer. Actor को feedback नहीं मिलता है.
हाँ हाँ तुम लोग को straight no thanks for coming, see you later, right? Like दे you don't देता है get like detailed. actors are ghosted. We just get क्योंकि ghosted and we're just मैं wondering what's going to happen. बट मेरे को डबल रिजेक्शन मिल रहा है ना, क्योंकि ये मैंने लिखा भी है बट स्टारिंग Okay. मी आल्सो. So one of the criticisms is ke हाँ we love the show but maybe we don't want you. That यस lead, यस yeah. यस Of दैट इज course. अभी मतलब मेरे पे तू अगर पैसा डाल रहा है तो तेरे को रिटर्न में क्या मिल रहा है? फिलहाल सिर्फ टेस आर्मी देखेगी तेरा शो पे, सो बाय डिफॉल्ट यू आर लाइक एक मिनट वी नीड समबडी एल्स टू बी देयर, बट या But ये देख, नाच गाना चलते रहता है भाई. I need from you, I need शैतान हवेली सीक्वल. तू मेरे को चाहिए, तू कुछ भी बना, तू शैतान हवेली सीक्वल उल्लू पे भी डाल दे, सेक्स भी डाल दे, लोगों का, वैम्पायर्स का, कुछ मजेदार, कुछ ब्रो स्पाइसी. मैं फुल्ली रेडी हूँ, बिकॉज यू वोंट बिलीव कल रात को मेरे साथ ही हुआ व्हेन आई गॉट अ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. ठीक है, अभी हम लोग, मैं अपने टेस्ट रेडिट ग्रुप पे था, ठीक है, ऐसे देख रहा हूँ कि पब्लिक क्या डालते हैं, बिकॉज वी हैव रियली फनी कंटेंट दैट ऑल दीस गाइस मेक. उसमें एक जेन्युइन क्वेश्चन डाला किसी में, आई हैव बीन अ टेस्ट फैन, आई हैव बीन अ टेस्ट फैन फॉर वेरी लॉन्ग, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, व्हाट इज वरुण's प्राइमरी जॉब एग्जैक्टली. इतना भूल गए क्या लोग? व्हाट इज हिज प्राइमरी जॉब एग्जैक्टली? द अदर थ्री गाइस आर वेरी वोकल अबाउट देयर करियर. कौतुक इज अ राइटर, आदर इज एन एक्टर, बाबा वर्क्स इन एडवर्टाइजिंग, एंड वरुण हैड मेड शैतान हवेली. What does he do now? The ये एक top बजे रात को comment देख there रहा हूँ was ब्रो. house husband. वेरी टफ गिग. That is a Plant tough parrot. किसी ने कहा बे ब्रो निकिता पैसे कमा रही है. वो उड़ा रहा है ये मतलब है क्या क्या चल रहा है. वो भी कोई But, प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही है. हाँ, बट ऑल्सो ब्रो खम्बा, एक और चीज जो चेंज हुए बहुत टाइम से, वी हैव नॉट गॉटन अ चांस टू स्पीक. शादीशुदा जिंदगी हाँ कैसी है? यार, वेरी गुड मैन. एक्चुअली यार, you and I have never spoken about it. हाँ, मिले ही नहीं. So, no, really good. Actually, everything I wanted it to be. In the sense, अभी I don't know, ये मेरे को लोग फालतू में वो करेंगे. But so for me, because my parents split up when I was a kid, right? So for me, more than anything, which is like work and all, वो तो चलता रहता है. For me, that was like a very important thing in my life to be good in a marriage, etc., and have a good marriage, etc. So अब ये shit, ये घर वाले देख के अभी 4 जूत आएगा. Anyway, but the idea like that was a big trigger for me and always has been. So that's what really important. So it's really good, man. Like I really think it added a lot of I won't say stability is a bad word, but not bad, but like a wrong word. But I think it just added a lot more perspective in life. Like I really look forward to. I'm very happy to be out of the Londa phase of life. Yeah, fully agree. Let's put it this way. Yes, Definitely. And yes. So that's a very, like you guys are relating, it's a very good place to be emotionally and sort of otherwise also, because you have someone at home who's a rock, and hopefully vice versa. I think if you ask Ismeet, she will be able to answer the questions. Right. वो अलग बात है कि इंस्टाग्राम पे इसमीत और मैं ज्यादा सामान डालते नहीं, तो उसको भी बड़े मैसेज आ जाते हैं रैंडम लोगों के, मैडम आपका डिवोर्स हो गया खम्बा सर से. आपका वो तो चलता, वो भी चलता रहता है, पैरेलल ट्रैक. But anyway, so one thing is keep put like that's what if you don't put out shit on Instagram, then people think marriage is also It fun. doesn't exist. हाँ. But dude, that's so weird. हम लोग इधर सुबह को भाई वरुण आजकल स्टैंड अप नहीं कर रहे, कंटेंट नहीं बना, क्योंकि कंटेंट डाला नहीं, बीवी के साथ फोटो डाला नहीं, तो शादी भी बराबर नहीं कर रहा है. तो हर चीज में कंटेंट प्राइमरी है कि भाई रील डाला कि नहीं. If you don't put a reel, it's not true. Correct. So, but I don't know if this has happened to you guys. Like sometimes when I see algorithm पे जैसे कुछ आता है ना, बहुत ज्यादा, जैसे किसी की बहुत ज्यादा सेलिब्रेट हुई है शादी, ज्यादा ही रील आ रहा है, तो my first thought is कि जिस दिन इनका डिवोर्स हुआ ये इतना फनी हुआ. ये The sunk cost fallacy is so high. Yeah, it's very, like, I don't know if people don't feel pressure or what. Like, I don't understand. Do you No, guys no, put out active content, marriage? as like couple content, हाँ. I think it'll happen, birthday wish, anniversary wish, इधर उधर, but we are not constantly put. अभी holiday पे चले गए तो चल भाई इधर खाया इधर पिया, अरे ये देख waterfall, अरे हम swimming कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत आ गया. But
It's not like every day कि oh love you baby ये ले फोटो डाल दिया तू खाना बना रही है oh तू खाना खा रही है oh तू ये कर रही है I- Yeah, dude if it comes that's happening, no, naturally nowadays. Your first thought of Nikita is just वो खाना खा रही है. खाना, it's just food related stuff. bro खाना तू ठूस कभी रही हो उसका बैठ खाना के. खा के देख उसका खाना खा के देख कभी bro उफ मैंने कितने Dude, बार ऐसे चुप के वो पास्ता बना रही है हाँ हाँ वो बनाएगी बुला क्यों ले नहीं घर पे यार. हाँ तो पास्ता खाना है भाई पास्ता क्वीन है वो फुल पावर मैं मजाक नहीं कर रहा और ग्लूटेन फ्री भी मिलेगा कोई Dude, but मैदे का भी टेंशन this thing now about social media and like having to put your thing out there, like I just like there's such a thin line between expressing yourself and exploiting your relationship. Oh yeah. Such a thin At this line. point तो मेरे को लगता है comedians are having kids just to improve their content. Yeah, why do you think I had Ira? Yeah. ब्रो 1 सेकंड यू डोंट इवन नीड टू आई डोंट हैव अ किड मेरे पास 15 मिनट बच्चों के ऊपर मटेरियल है जो मेरे हाँ, पास मेरे पास है for the- I have stuff about my mother's dog. I have stuff अलग ही चल रहा है मेरा. मेरे फैमिली मुझे बच्चा करने बोले तो उसके ऊपर 15 बच्चा है ही नहीं तो बच्चा आएगा तो 15 और मिनट करेक्ट. But, बट ये see, मैं इसलिए अभी पीच का कंटेंट नहीं डालता हूँ बिकॉज कैसी पीच कैसी है ब्रो मस्त यार 8.5 साल की अब तो मेलो हो गई है. Oh wow. अच्छा तो शी इज लाइक आई वुड बी लाइक यार अब मैं कुत्तों से लाइक्स उठा रहा हूँ तो मतलब बड़ा अजीब. बट अभी फिर अभी बताओ क्या होता है मेरे को इतना गिल्ट होता था ना कैप्शन कुप्शन डालने का. अब जैसे यूके टूर करना था टिकट्स तो बेचनी है और वहां पे Oh, कुछ लोग हैं तो मैं बस ऐसी स्टोरी रीपोस्ट करके निकल लेता था ताकि और ना करना पड़े. But now, like, because even Peach would be like, she's like me now, so where she hates the camera. तो कैमरा मुंह पे आया नहीं और मुंह फेर लिया उसने. तो इवन she's like, तो बस यार हो गया मतलब बुड्ढी हो गई हूँ. bro, you But cannot. by the way, just for context, guys, if in case there's some people who don't know, Peach is Khamba's dog. Yeah. Just थोड़े public confuse Peach कौन है? 8.5 साल की बुड्ढी होगी. In dog years, she's getting up there, but no, she's good. Touch wood, all good. She's also actually we were discussing that the other day. She's also mellowed out a fair bit from when she used to be like a pup, which is good because she's bit us all. And now she does it. So it's No, good. but I remember back, JB, when you had just gotten her, she was a hyper मतलब- baby. मैं Maniac. यहाँ रह के बात करती थी वो है ऐसे ही बट वो इधर yeah. आके इतना तो शी वाज वेरी नॉट इन अ very. बाइटी वे बट शी वाज वेरी एक्टिव एकदम भर भर के Bro, that's the. She had become a little aggressive, which was, I think, which in hindsight was down to my bad doggy parenting. In terms of, I think I realized that I should have socialized her a lot more, etc., which I realized slightly later because she was also the first dog I had. So, of course, those mistakes, as much as I have been able to correct, I have. So that's better. But I don't know if you guys have had this conversation, but like some days, Smith and I would just be like, we should get her a friend. And I'm like, that's literally how every fucking conversation happens about the second child. The child needs a friend. I've been having these conversations with friends about my parents. We have to get them a friend. They're getting cranky. We have to figure out because they're becoming antisocial. We have to make them go out and meet their own friends. It's like we are setting up dates. It's like बाहर जाओ आप please अपने normal दोस्तों से मिलो जाके. Yeah. But this is a thing, this is a massive issue. Yeah. Like I think, and is this more a guy issue? Like as you grow older, like your circle drops anyway, and which is why like there's so many interesting reports on like male loneliness now, especially in like urban cities. But primarily being one of them. So many of like our corporate friends, I'm sure you all will also have these friends who are just stuck, and then you're in that loop of अच्छा Friday रात को जाओ, right swipe, left swipe, अब Monday वही बैठ के ये फिर थोड़ा पीते हैं फिर वापस. But I think it also comes with age, right? Because I remember when in my 20s when people would be like अरे चल हाउस पार्टी करते हैं, चल पागल है क्या, चल बाहर भाई क्लब जा रहे, ओ फेस्टिवल जा रहे, ये वो. Now that whole thing is reversed where when you are at that age you're like dude I don't want to go out, मेरे को crowd में नहीं रहना है, घर पे रहना है. तो I think it's a product of age. But I mean that the fact that you're still going to a house party, you're doing way better than average. yeah. Better than 95% of the people. Yeah. Because like what I found in my circle in life was, especially with like the older men, right? So what they tend to do is they tend to make their primary identity their work. Yeah. And their primary friends their acquaintances.
and then Correct. they retire. And then the day they retire, they don't know who they are. They don't know who to meet. Yeah. They're just like, it's like life is starting again, but now you're 60. And Correct. it's Yeah. tough. at least हमारे पास वो as comedians हैं अतुल sir as a reference कि हम comedy club में जाके बैठ सकते हैं, Yeah. comics के साथ दोस्तियां कर लो. At least Yeah, हमारे पास yeah. एक outlet तो है. हाँ. है And, correct. and it's a very social profession in general. Like, you are out amongst people, you are doing like, it's a social thing. Yeah. So that's one of the good saving graces. Yeah, But yeah. it's a tough fucking thing. But have you been since you've had a child, Kautuk, have you become less active? It must be anyway a function of Yeah, not being able to because function. like your time reduces a lot. And plus, like right now, she's 6 months old. So there's not much we can do with taking her out as well. Correct. So for at least, this period of time, it's been very like, we're mostly at home. We get people over at home. But the other problem, this is what I've been facing, is honestly, Mumbai is an issue. Hmm. Try Hmm. convincing a friend to come to your house through traffic. Yeah. Like, phone is good. Phone is good. So No, you find out So- how close the friend really is basis वो तेरे लिए 15 किलोमीटर आ Yeah. रहा है yeah, क्या? yeah. Does he or she value your friendship enough that you're हाँ. like, नहीं, I'll wade through 1 hour 40 minutes of traffic to come see you. Yeah. बहुत काम होता है No, भाई. so I was on my last day in Bombay. I had spoken to Kautuk one night before. हम लोग का एक शो था, तो मैंने रात को बोला था कौतुक नेक्स्ट डे तू क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है? हाँ ठीक है, तो मैं आऊंगा एक बार ईरा को मिलके फिर वापस लंदन जाऊंगा. तो मैं आया, I came near his house and I called him. Kautuk didn't answer the phone. He was sleeping, he was tired, and I went back home. And then Kautuk called me an hour later. Kautuk, मैं नहीं आ रहा अभी. I'm 20 minutes away from his house. That's like I can't brave that traffic again. Yeah, dude. It's like, but yeah, we've been talking about this. Like, you have to make a very. I think the other thing is, you don't register how much effort it is now. Like when you're in your 20s and stuff, it's no effort. It's just, Yeah. it's fun. It's hanging out. Like now, it's like a thing I have to schedule, and that's a weird thing. Like it's a weird shift. No, ठीक है. Part of growing up. I think we should also check with Azim how his has shifted post the move to Goa, etc., etc. कि वो मैस्करेनस बन गया. उसके अभी दीवार पे पीछे ऐसे गिटार विटार लगा हुआ है. वो बहुत खुश है. वो हमेशा बोलते हैं कि ब्रो वो वाले रेट पे तेरे को 3x द साइज ऑफ हाउस मिल रहा है, स्लो पेस, चिल, ट्रैफिक नहीं है. You know what मेरे को तो else? बहुत मजा आ रहा है. You know what else Azim did, which is amazing, which is what everyone needs to do. He went and he plays football. हाँ. तो वो हॉबी पकड़ा है, and through hobby he is meeting people. तो ये है trick. करेक्ट. मेरा उल्टा हो गया. मैं लेगो बनाता है बैठ के. वो पहले ही आइसोलेटेड काम में. और इसके बाद देखो ना, लेगो का घर बना देगा तू, और तू अंदर जाके बैठ जाए. बोला मैं नहीं जा रहा, बाहर ही नहीं जा रहा. बट दिस इज वेयर बॉम्बे इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. जगह ही नहीं है. बस मैं बना तो देता हूँ. उस दिन मैंने अपने रूम के लिए एक ना लेगो डज दिस ऑसम टाइपराइटर. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू आर लेगो फैंस. इट लुक्स गॉर्जियस. ओके, गॉर्जियस टाइपराइटर. मस्त. मैंने 3 दिन लगा के एकदम जबरदस्त बनाया. एंड अगले दिन दीदी accidentally doing jhadu, one elbow, all Lego gone. And now I'm just like, fuck, I am not making this shit again. So now it's just वो metaphor for every writer's life is वर्सोवा की आधा टूटा टाइपराइटर कमरे में पड़ा हुआ है. उसके अंदर एक कागज लटका हुआ है. Fuck all. Bro, क्या करें? 100%. This Mumbai house thing, we've spoken about this on a previous episode. So we shifted houses, and 16 boxes were just books, right? And now my wife is like, we live in Mumbai. Yeah. Books are not paying rent, so books don't get space. Yeah, because या तो that तू अपने space is, yeah, you're spending a lot of money on that real estate. Yeah. That Yeah, 1 yeah. by 1 foot. No, you will have to repurpose it now. तेरे ऐसे बुक्स को ऐसे हॉरिजॉन्टल बैठा, उसके ऊपर डाल एक मैट्रेस, और वो बन जाएगा तेरा बेड. ऐसा कुछ करना पड़ेगा. Guest bedroom. हाँ, उसका मैंने कॉफी शॉप्स में वो भी देखा हुआ है. उसके ऊपर वो बुक्स को ऐसे पाइल बना के कांच ऊपर रख देता है, कॉफी टेबल. कॉफी टेबल आर्टिस्टिक वो वाला Artistic, vibe के अंदर. जो भी और फिर जब भी जो पढ़ना जब भी नहीं है, book- tell me why वगैरह.
हाँ, और जब भी बुक पढ़ना तेरे को जंगा खेलना पड़ता है कि यहाँ से मारूंगा तो शायद पढ़ लिया, डालो अंदर. बट Right. Kamba, what are you reading, watching, listening to nowadays on the internet पे what has caught your यार attention? मैंने अभी तो I don't know if you guys know this. I am a reality show fiend. Oh, हाँ, It is my fucking मेरा देखो इस बार ही मैंने देखा स्प्लिट्सविला. तू देखा है Oh. स्प्लिट्सविला? आउटस्टैंडिंग सीजन. हाँ, लेटेस्ट मैंने 5 साल बाद कैच अप किया. जबरदस्त सीजन. जबरदस्त सीजन. उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली खत्म किया. और ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि जब किसी प्रोड्यूसर को मिलने जाओ ना कि वो बोलते हैं अच्छा यू एज अ राइटर व्हाट हैव यू जस्ट फिनिश्ड, व्हाट यू वाचिंग ऑन नेटफ्लिक्स. और मैं कहता लव इज ब्लाइंड. Love is Hi, Blind. yes. Dude, Yes, that yes. show is insanely addictive. सर Bro, लव इज इधर ब्लाइंड. इधर एक एडिक्ट है मेरे अरे घर हम पे लोग भी पूरा टाइम. दिया ना सेम. एंड आई हैव नॉट पार्टेकन इन इट येट. मैं थोड़ा ऐसे इधर उधर वाले एपिसोड देखे क्योंकि नहीं, मैं मुझे वो जब फ्रिज रियलिटी खोलते शो खोलते देखना ऐसे है ना, साइड से ये क्या चल जब रहा मुझे है, रियलिटी अच्छा शो अच्छा देखना इसने है ना, छोड़ दिया. मुझे देसी पब्लिक चाहिए क्योंकि ना उसमें एक थोड़ा एक रिलेट होता है ज्यादा. ठीक है, यहाँ पर तू लव इज ब्लाइंड. स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट से रिलेट करना तो नहीं चाहना नहीं चाहिए. Yeah, yeah. अबे उनके थोपड़े को अच्छा like that. वैसे वैसे ये अपना ही है, नॉट अपने देश के. हाँ, तो जब भी एक दूसरे के अगर गार्ड मारे तो अपने वे में मार रहे. उनका थोड़ा मेरे को अच्छा. डिसएसोसिएशन हो जाता है. अच्छा, तो रियलिटी शो में स्वदेशी है, दैट्स योर थिंग. मेक इन इंडिया रियलिटी शोज में मेक इन इंडिया. तो तुम्हें ये टू हॉट टू हैंडल और रियल हाउसवाइव्स ऑफ बेवर्ली हिल्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं? मजा नहीं आता मेरे को उसमें. उतना क्रिंज नहीं लगता है. हाँ, he wants to see ठीक है, Real वो- Housewives of Ghatkopar East. That's what he हाँ, wants to watch. अबे तू एक मिनट, तू रियल हाउसवाइव्स देख या तू दिल्ली डार्लिंग्स देख. ठीक है, ज्यादा क्रिंज क्या है भाई? ज्यादा क्रिंज तो दिल्ली डार्लिंग्स है ना, तो मजा उसमें आता है. शॉर्ट It एंड is one of my स्वीट. favorite this shows which didn't get season 2. Dilly Darlings was outstanding. Yeah, why Yeah. didn't it? Why didn't it get a season 2? Man? पता नहीं, Because it is Dilly Darlings. That's why. But it promised exactly. Sorry, it delivered exactly what it promised. It Yes. was pure. एंड उसमें यार Yeah. आई नो कि कुछ बन रहा है उस टाइप का ऑन अ बिगर स्केल. कुछ तो उस टाइप का बना रहे हैं विद लाइक पॉश फैमिलीज एंड शिट लाइक दैट. पर जैसे इस बारी जैसे अभी उर्फी का शो आया, फॉलो कर लो यार, मजेदार. और मजेदार शो बिकॉज एटलीस्ट यू आर. आई ऑल्सो नो इट इज. मतलब बताओ क्या होता है, सारा दिन तुम काम करके आओ Yeah. तो अपने क्रिंज के भी लेवल्स है ना. जैसे मेरा क्रिंज का लेवल है कि यार स्प्लिट्सविला ठीक है, बिग बॉस नहीं. राइट. हाँ, है ना. it's weird. It's weird. तुम्हारा ग्रेडिंग है कि यहां तक मैं एक्सेप्टेबल लेवल है. तो इट्स फन मैन, इट्स टाइम पास. सनी इज ग्रेट एज अ होस्ट. द कंटेस्टेंट्स वर आल्सो फन दिस टाइम, वेरी फन पर्सनालिटीज. और वो थोड़ा वो भी होता है कि यार क्या मतलब सबने एज के बारे झूठ बोला हुआ है. 35 साल के 35 साल के हाँ. बॉडी बिल्डर कह रहे हैं मैं 23. मैं भोसड़ी के कल दिखा था मेरे को तो अंधेरी में जिम के अंदर. क्या बात कर रहे हैं. तो कुछ भी लगा हुआ है तो वो अच्छा लगता है हाँ. मुझे. और सॉरी गो. डू यू डू दिस जैसे रियलिटी शोज पे? वन थिंग आई आल्सो लाइक इज पहले एपिसोड में मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे इस बंदे के कितने फॉलोअर्स हैं. उसके बाद फिनाले End पे में इस देखता है. बंदे के कितने फॉलोअर्स हैं. Yeah, उससे yeah. तुम्हें शो का सक्सेस पता चलता है. करेक्ट ब्रो. बट आई नोटिस अभी एक और में वो कौन सा देखा, टेम्पटेशन आइलैंड जो आया था. ठीक है, बेस्ट. तो मैं बोला चल भाई देखा जाए. तो मैं निकिता बैठ के देख रहे. एंड इस पे वही सारा चल रहा है कि ओ आई एम 23 years old. और तू जाके थोड़ा एक रेडिट सर्च मार तो मालूम पड़ जाएगा अबे नहीं भाई 38. ये इसके पहले भी 6 अलग रियलिटी शो में आ चुके हैं. So I've lost touch. The last reality show I'd seen before this was Skulls and Roses. नाइस. भाई, Oh, Skulls and Roses Ah. was oh my God. Cringe, outstanding. like the cringe that hits the right spot. Bro, मजा आ गया. तो उसके बाद मैंने देखा ही नहीं था. बट वुड यू अब तो हमारी Go for it. गलती हो गई. अगर हमें आता तो तुम जाते क्या? लाइक मैंने तो अपने सच दोस्त को बताइए. फोन किया कि टेम्पटेशन आइलैंड सीजन 2 अगर होता है मैं लिखना चाह रहा हूँ. आई वुड वांट टू राइट. मैंने अपना फेंक दिया पत्ता कि आई वुड लाइक टू राइट दिस शो. क्या बात कर रहे हैं? अरे बट ये होता है क्या? Hey, When you sit with your wife, right? She'll ask you, would you have gone or what in this show if No, you were? that's what she doesn't. Yeah, I said. But we मेरे do से- find our favorites and Yeah. हाँ, dude. So Yours. Khamba, I met the writer. Okay, so I was doing a project, and there was a writer who was working with me. So, conversation with Nikla, she had written, you know, in Splitsvilla they had that book of fortune in some season. yes. She had written that stuff.
I was like, this is, and she, said it sheepishly. I was like, are you kidding me? That's the thing, the first thing on the resume. Dude, that's amazing. How did you get this opportunity? मुझे लगता है कि फॉर सम रीजन लोगों को लगता है पीपल लुक डाउन अपॉन राइटिंग नॉन फिक्शन बट एक्चुअली ए इट इज मच हार्डर Yeah, very hard. कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग ठाकुर से पूछ हमने एक बहुत ही खराब शो लिखा था एमटीवी के लिए साथ में Abhi, I was there on that. अरे हाँ भी तो था। करेक्ट 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 और बाबा भी था। बाबा भी था ओ यस फक हाँ अरे तो अब वो देख हमने वो और हम हमारा उसमें यही होता था कि कल स्क्रिप्ट देनी है Yes. और शिट कोई जोक्स ही नहीं आ रहे तो हम वरुण को बोलते थे वरुण ये इतना फनी नहीं है तू क्या कर सकता है तो वरुण कहता था यार मैं संजय दत्त कर सकता हूँ मैं कहा, "चल, संजय दत्त।" तो उसके बाद सडनली वो सेम फक्कॉल लाइन अमेजिंगली फनी हो जाता था क्योंकि ठाकुर करता था संजय दत्त तो But Bro, I remember this exact same sketch. उसमें हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया. Jose is interviewing संजय दत्त. I'm playing संजय दत्त. कैसे तो हमने कुछ तो कर दिया कि भाई निकल जाए, मिमिक्री में निकल जाए. तो उसमें, but there was a question that Jose had to ask संजय दत्त that where like what vocation would you want your kids to take up? हाँ. तो संजय दत्त बोलता अरे मुझे Vacation. क्या फर्क पड़ता है किधर भी वेकेशन के लिए जाए इधर जाए अभी 14 साल बाद क्या लग रहा है लेकिन वो टाइम पे हम लोग इतना हंसे थे एमटी वाले हाँ फनी फनी डाल वोकेशन वेकेशन भाई अप्रूव्ड सर मैं बता रहा हूँ इट इज सो मच प्रेशर अब टेम्पटेशन आइलैंड के अंदर भी आई थिंक देवांशी wrote it someone wrote it I don't know if we can say this but she wrote a roasting round where the contestants have to roast each other now that's so hard like you have to Yeah. be there watch that show live that life get their voice correctly so anyway point is कि even as a fiction writer it is अब मैं इसको intellectualize करता हूँ 30 seconds के लिए इज्जत बचाने के लिए कि as a fiction writer the number of characters that you get to put a reference in your head about who this person is like is outstanding in non-fiction. Yeah. So अब मैंने बचा लिया. Dude, like, but like stuff like I know the guy who used to be the ghostwriter for Indian Idol. He had to sit behind the chair. There are 3 writers at any given point just going, अच्छा अभी ये उंगली करो. अच्छा नहीं अभी उसको बोलो कि वो फकौल है. But वो फकौल नहीं है. बोलते नहीं फकौल है बोलो उसको. It's just creating this manufactured conflict that the channel has mandated that you have to do. And as a writer, you have to make it convincing right there on the spot. तो literally पीछे typewriter मतलब लैपटॉप लेके बैठा है और तू निकाल के दे रहा है इन लोगों को फ्रेश ब्रो मेरे पास एक लिव्ड एक्सपीरियंस बिहाइंड द सीन ऑफ रियलिटी शो का मैं एग्जांपल देता हूँ ठीक है तो मैं और तन्मय हम लोग ने बैक इन द डे एक शो किया था एमटीवी ऑन द जॉब ठीक है वेयर देयर 2 टीम्स हु विल कम्पीट और जो भी टीम जीतती उनको कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग के साथ 3 महीने का इंटर्नशिप मिलेगा ये वो और हम लोग थे 17-18 साल के जस्ट गेटिंग इनटू बीएमएम मास मीडिया टाइप वी सेड फक इट करते हैं तो हमने शूट वूट करा है एंड देन दे डू द वीडियो डायरीज वेयर द प्रोड्यूसर विल सिट एंड आस्क यू अबाउट सर्टेन सिचुएशंस हाउ डिड यू रिएक्ट व्हाट डिड यू फील ये वो तो उसने पूछा है दैट ये वाले सिचुएशन में व्हेन योर टीममेट डिड दिस व्हाट डिड यू फील तो मैं बोल रहा नो यू हैव टू से आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग I'm like, no, I did. No, you have to say, I felt like slapping XYZ because she did this. I didn't feel like slapping. Was I annoyed? Yes. Was it a problem that led to the team losing? Yes. But I didn't want to slap. But eventually, jo gaya, I felt like slapping her because so automatically, just the addition of that one word makes it seem that अरे अनबन बहुत है उसने उसको वो दिखा दिया वो लड़की ने 2 चीज और बोले so it's just fabrication the way it's done subtly that makes such a big difference that video can't go up on his LinkedIn sorry other say no that video can't go up on his LinkedIn profile works well with co-workers occasionally slaps पर ये देखो इसमें है ना राइटर का बेनिफिट देखो एक वर्ड राइटर ने बदला है और पूरा मीनिंग बदल दिया do you watch reality shows now or like you know my favorite hack like it's my favorite writing hack for when you're writing like a award show or some chutiya non-fiction which is that अगर कोई actor present कर रहा है तो
एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखो उसी की 4 फिल्मों के टाइटल्स से कि हम्म आलिया भट्ट जिनमें है बहुत ज्यादा जिगरा और हाँ कोटी में रहती है ये इटर्नल सनशाइन हाँ में हाँ 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 ऐसे करेक्ट करके करेक्ट करेक्ट वो तो हर फेवरेट गली है बॉय की शान ऐसे ऐसे करके बहुत हाँ हाँ these are हाँ all skills that fiction people don't have. yeah. Just चूतिया and then you make someone read it they're like wow. ब्रो प्रोड्यूसर को चाहिए था ना मोमेंट चाहिए मोमेंट हम Moment. लोग अवार्ड शो जब भी लिखना होता है ना सी मेरे को फोन करके ब्रीफिंग में ये बोला है कि वी वांट मोमेंट्स सो आई वाज लाइक आई एम सॉरी anything you write right it should have a moment I said but they're all basically moments only no it has to be a moment तो हम लोग बैक एंड फोर्थ 1 मिनट का 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन है जिसमें सिर्फ मोमेंट बोला गया है Moment. बट ऐसे these are moment no it has to be a moment This is like interesting TV lingo. So Smith did this TV show about 3 years ago. Actually, very nice show called Dosti Anokhi on Sony. Okay, actually a very nice show. It's called Dosti. Dosti Anokhi. So Anokhi. it's a really nice story about this girl and she basically generation gap दिखाया है. उसके अंदर ना I remember तो उन्होंने बीच में रोमांस ट्रैक डाल दिया because TV. Right. तो उसमें एक दिन मेरे को स्मिथ ने आके बोली वो टर्मिनोलॉजी सिखा रही थी मुझे कि टीवी पे क्या होता है जो हमने कभी करा नहीं है तो उसको ना सीन शूट करना था वेयर वो लड़के को देख रही है लड़का उसे देख रहा है और पीछे ना ऐसे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है तो अपेरेंटली दिस इज कॉल्ड लुक लुक मैडम आप लुक देंगे वो आपको लुक देगा लुक करना है मैडम लुक तो वो कह रही है कि Look. मैं Look, 2 मिनट तक बस उसे देख ही जा रही हूँ ऐसे करके और वो भी मुझे ऐसे देख ही जा रहा है बहन जो हमें पता नहीं पीछे म्यूजिक क्या चलेगा इसके Dude, Just- that's insane there was a similar like this kind of trope. So I'd written Sumit Sambhalega, which अरे was very nice show. which was like a proper adaptation of Everybody Loves Raymond. Raymond, correct. So they got a writer producer from the original show to come and like do one session with us. So he was saying that there's a term that they had, okay, which is a trope that all of us as comedy writers use. Okay, so here's what the thing is. So in these kind of shows where there's like a very like at the end of the episode, comedy hua hai, at the end of the episode, everybody learns the lesson, right? And there's one monologue where one character finally like tells the audience plainly ki ye hai lesson, ye hai moral, right? So it's a very dull thing. And at the end of that dull monologue, there is one joke, right? There's one at the end. So that thing is called a treacle cutter. Oh, So you have all this because the treacle. tension it has Yeah. been oh So you have all these like Eh. treacly bits, and then you have the treacle cutter, which is the joke at the And end then of a sappy in- monologue. in India it's called pudding Pudding. it's the actor going. हैं? तो ये टीवी का जो सीन था ना तो लॉट ऑफ द बालाजी शो सास बहू शोज पहले तो इधर बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑफिस के यहाँ पर उनका स्टूडियो था वहां होता था देन बिकॉज दे आर मेकिंग लाइक इट्स अ फैक्ट्री राइट कि भैंचो 150 शो निकल रहे हैं सब में सास तो है बहू तो है और उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कभी नागिन कभी ये कभी Correct. कुछ क्राइम कभी डॉक्टर सो भायंदर और समवेयर इन बॉम्बे उनका एक बड़ा सेटअप था जिधर हम लोग रेकी करने गए थे टू सी वहां पर शैतान अभी का कुछ शूट कर सकते हैं क्या बिकॉज दे हैव दैट पुराना खंडर सेटअप पुराना महल ये वो तो करने गए थे ब्रो आई एम नॉट किडिंग व्हेन वी वेंट राइट ऐसे शायद ब्रेक टाइम था क्योंकि उनको वैसे भी 18 घंटे काम कराते फिर 4 मिनट की ब्रेक देते बोलते फटाफट जाके जो भी करना है वापस आ जाओ उसके बाद Correct. ब्रो उधर है ना लोग चल रहे हैं बट सारे वो जो बहू वाले ड्रेस होता है ना पूरा एकदम और फिर जो मर्द है वो पूरा टाइम अपने वो जो कुर्ता पजामा जैसे दिवाली के लिए जा रहे हैं डूड इफ यू गो टू अ लोअर पैरेल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स यू विल सी एवरीबॉडी इन दैट ऑफिस शर्ट और तेरा बेल्ट ना इधर वही वाले आउटफिट में ब्रो 1000 लोग चल रहे हैं तो और शूट क्या हो रहा है बेडरूम सीन हाँ वो सोने जा रहे हैं ऐसे सोने जाते हैं Bro, I was just like, you can literally just walk and be like, अरे भाभी आप आइए अभी अरे मैं शो में नहीं हूँ नहीं आप आ जाइए चलेगा आप ऑलरेडी you're already fit for this. It was insane like जिस तरीके से उन लोग का चलता है उधर The churn, yeah. But यार बहुत अच्छा। brutal है. I didn't realize it's like obviously I had known it's hard, but like even for like she used to be shooting like again 16 hours, 18 hours. It's very brutal. There is one thing which I will never forget, which was a thing that I did not know. We were just going over contract negotiation.
अब एज अ राइटर योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी कि इतने पे 10%, इतने पे 20%, ट्रांचेस, ब्ला ब्ला, really plain and simple. When I think Smith got the contract, my manager was like, just make sure the contract doesn't have a line, which I'm paraphrasing, that doesn't have a line with saying channel can change character's form without informing. And I was like, what does it mean कि Oh. changing form? कहते 1.5 साल बाद शो नहीं चला तो मक्खी बना दिया तो Oh, wow. अच्छा, And I'm form as in like not another human being, कुछ भी हो सकता है. Their DNA, the character's DNA, Character's DNA. and क्योंकि यू नेवर नो, ये नहीं है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव लीड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो शोज भी होते हैं ना कि पहले चला नहीं, फिर ट्राई किया कि इसको थोड़ा वैम्प बना दो, अच्छा ये नहीं चला तो अब एक काम करते हैं इसमें एक और एक्सटर्नल लाते हैं, अच्छा वो भी नहीं चला, लीप ले लो, अच्छा लीप भी नहीं चली, मक्खी बना दो, मक्खी। मतलब तो यू नो, तो ये पता नहीं था मुझे, तो ये मेरे को कभी नहीं भूलेगा कि ये, और this is my pet peeve. I've told a million people this. I don't know, I might have told someone else also. My one thing I really want to do in life, which is on my bucket list, is be a background Live. extra oh, in a television show. Because the background extras are told to give the worst reactions. Like, for example, hero, heroine, hero, मैं एक पिक्चर देख रहा था रिसेंटली. मेरा गाय is an evil lawyer, old Hindi movie, evil lawyer, and in the end he redeems himself by telling the truth to his other lawyers. तो other lawyers were clearly shot on a different day and they don't know. तो 4 lawyer ऐसे खड़े और एक lawyer वो मार रहा है आदमी वहां पे. The cut to the guy is shot and dying with blood coming out. Dude, but so Siddhi and I, during the pandemic, we had started watching what I think is the rawest reality show that has come out of India yet, and the most fun, Emotional Atyachar. Oh my God! From I don't back in think- the day. Yeah, the Pravesh Rana hosted episodes, okay, where they were really going after people's relationships. Like it wasn't forged, fake, nothing. Like they were really breaking people up, and it was the best TV I've ever seen in my life. I don't think anything has come close. Bro, Can so I many tell of you my a- friends have worked on it. Sorry, Kama, I'll just say this. So many of my friends have worked on this show because this is 2008, 9, 10 wala era. ठीक है? That time I used to be a VJ with UTV Bindas, where we used to do a show called Sid versus Varun Do Kamine, ठीक है? Which was an adaptation of a Canadian show. Now they had got us into a house where we were living. Because the creative producer said that इन लोग की केमिस्ट्री के लिए इनको थोड़ा साथ में रहने दो. So they rented a house और मैं और ये सेट हम वहां रहते थे. Then they said अरे पैसा तो यूटीवी भर रहा है बिंदास के लिए, तो एक काम करो हॉल को इमोशनल अत्याचार का ऑफिस बना दो. तो I have been in on these meetings. I have sat, I have seen उन लोग कैसे प्लान करते हैं. I have seen that moment when they decided कि अभी बॉम्बे बस यार दिल्ली चलते हैं. Because that was the game changer. The real game changer was Delhi because there was a spate in 2008 to 10, 11, 12. All your reality shows, UTV, MTV, Channel V, they just पूरा बोरिया बिस्तर लेके सीधा North India चले गए. Because they saw the success with the roadies and they said we'll replicate it across reality shows. This was They just India's comedy scene, but UTV. Exactly. दिल्ली चलते हैं, बॉम्बे से नहीं हो रहा है. मजा नहीं आ रहा है. बॉम्बे में मजा नहीं आ रहा है. तुम लोग देख रहे हो, मतलब किसी की रिलेशनशिप तोड़ दिए. उसमें से एक बंदा जो मुझे मालूम है उसने हक दिया है. होने के बाद अगले दिन हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है. That's a way to put it. Yes. अब उसने नहीं, बट बिकॉज नहीं, आई नो बराबर ना, है. मेरे को नहीं, correct है, पीछे correct का है. मेरे को क्लिप मालूम है, इसने हक दिया है एंड आई डोंट हाँ. नो द पर्सन. अगले वीक और समथिंग वी वर प्लेइंग क्रिकेट. दिस गाय वाज इन द ऑपोजिट टीम, completely oblivious of what is happening, and I'm just like भाई मजाक नहीं कर रहा. और क्योंकि मैं बोला इस चूती की शक्ल देखिए किधर यार. I don't know the guy, but how the fuck तूने do I किया क्या feel like I sledging? know him? नहीं चूती बेचारा. क्रिकेट में भी चीटिंग किया गया क्या? दो दिन के बाद एपिसोड आना है उसकी लगने वाली है. मतलब छोड़ रहने दे भाई. किसी को बोला नहीं, एक्चुअली बोला अपने दोस्तों को बोला कि चूतिया 2 दिन बाद इसको रात को 8 बजे देखना है, इसकी लगने वाली है. Oh my Fucking God. hell. और देख,
ज्यादा एक्साइटिंग है ना दिल्ली में रिलेशनशिप में, कभी कोई गन निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, बहुत कुछ हो सकता है, अनलिमिटेड Oh shit. पॉसिबिलिटीज। करेक्ट आई विल नाउ टेल यू माय इमोशनल अत्याचार स्टोरी। इमोशनल अत्याचार हो गया हिट शो, हाँ ठीक है। तो यूटीवी से फोन आता है मुझे और तन्मय को, कहते गाइस वी हैव एन आइडिया, वी वांट, दिस इज तन्मय रिएक्ट्स इन 2010, ओके। दे लाइक Oh गाइस, shit. खंबा तन्मय एक काम करो, वी वांट यू गाइस टू, वी विल प्ले इमोशनल अत्याचार, वी वांट यू टू गाइस टू डू रनिंग कमेंट्री ऑन टॉप ऑफ इमोशनल अत्याचार, और तुम ना जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी गांड मारो, ठीक है। ये हम पायलट शूट करेंगे यूटीवी के ऑफिस में। मैं और तन्मय पहुंच गए, हमने एक क्लिप चलाया, हम बातें कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा गाइस, एक काम करते हैं, इनको ना पानी की बजाय ना इनको वोडका दे दो, दोनों को वोडका पकड़ा दो दोनों को, ताकि ये थोड़ा सा ड्रंक हो जाए और थोड़ा रिएक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब तन्मय और मेरे को वोडका आ गई है, और हम अब सेकंड एपिसोड के ऊपर भी रिएक्शन दे रहे हैं, और ये शूट हो रहा है बकायदा, हमने कपड़े वपड़े पहने हुए। देन 2 एपिसोड शूट होने के बाद किसी यूटीवी एग्जीक्यूटिव को समझ आई, और उसने खड़े होकर बोला, सर हम अपने ही शो का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं?" ठीक है, तो क्रेजी। और फिर वो मेन बॉस पूछ रहा है कि ये आइडिया दी किसने, लाइक सर एक काम करो आप भी थोड़ा वोडका पी लो, ठीक है, उसके बाद सबको सबको पसंद आ जाएगी। UTV is madman, तो dude. सब बेवड़े, Yeah. ये आइडिया मस्त है सर, आप भी पियो, मजा नहीं आ रहा है सर, ये लो। प्रोड्यूसर रॉनी का स्क्रू ब्रेन वाला वेव ना, प्रोड्यूसर का ब्रेन वेव देख, ये कोई माइका वाइका को पड़ा रहेगा कि सर दिखेगा नहीं ना कि शराब है सर, क्लियर है ना सर वोडका, पहले लोगों को लगा पानी पी रहे हैं सर, पर अंदर से Bro, रिएक्शन। but this is exactly what happens when the entire industry is under the age of 25. This is it. Yes. This is it. Yeah. This is, अभी भी सेम होगा, सिर्फ वोडका के जगह पे टकीला हो जाएगा अभी, हाँ। बस ये, हाँ, बाकी सब सेम चल रहा है अभी तक। but yeah, But, I have a feeling they are going to bring it back. Emotional attachment. Yeah. इन्होंने ट्राई तो किया था बीच में, but I think they will bring it back again. नहीं अभी तो But all these- यूटीवी नहीं है, अभी वही यूटीवी अरे तो क्या चलेगा। हुआ, कोई राइट्स कर ले। Okay, if anybody is watching, I would love to Please. throw my hat into writing it. Kautuk, are you in? I'm in. I'm in. You're in, ready to Varun host. also in. I'm Other is like मैं लंदन इसलिए नहीं रह रहा हूँ कि ये तो ड्रामा करना पड़े। Dude, the guy who used to host it is in London. He moved to London. Yeah, I'm literally Ramesh. following in his footsteps. तो चल आदर तू होस्ट कर हम लोग वरुण को मेरे को- बस्ट करेंगे मैं उस दिन देख रहा हूँ कि I'm अबे talking to चुप some मैं guy क्यों in बस्ट London. हो रहा? मैं एक दो तो इंडियन से screen बात पे कर आ रहा रहा हूँ, like these British Indians, I'm talking to them and I'm like, अच्छा, what should I do? It's like, oh, actually, you should contact this guy. Who? And वो सर्च करके मेरे को दिखा था, ये इससे बात कर, ये देखो बताएगा रमेश लंदन में क्या करना चाहिए तेरे को। आदर will be Bro. a great host, क्योंकि जब भी कोई दिल दुखा होगा आदर पीछे म्यूजिक भी देगा। Just sad Standing with a guitar, just look. तो फिर मैं क्रिएटिव कंसल्टेंट, क्योंकि मैं नहीं आ रहा कैमरे। देख उधर वरुण, निकिता सुन रही है, यू वांट टू बी ऑन इमोशनल अत्याचार? नो आई डोंट। Like, yes. no Varun, listen, if Kautuk and I can't write a good script, तो संजय दत्त कौन करेगा? अरे इसको बोलते इमोशनल अत्याचार, ये रहा बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, ये चीटिंग क्या? Dude, the Fucking amount hell. of stuff I've heard and the MTV stories, the whole Jugadu attitude with which, so I was touring with Sahukar, Cyrus Sahukar. हाँ. So he told me, and I asked him one day, like, dude, that must have been so much fun when you guys shot Simi Girebal, because that हाँ. was something I grew Semi up. गिरे बाल यार Yeah, correct. And he is like, Semi Girebal. And he was like, dude, that was a fucking panic shoot, because apparently they wanted to shoot Vikram and Betal with Cyrus and Cyrus. Ab Sahukar can't lift brocha. बोलते हैं बहन जो इतना भारी था मैं नहीं उठा सकता उसको, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चल तू बेताल बनेगा, तो फिर साहूकार बेताल बन रहा है तो उसके पैर लटक रहे हैं नीचे जमीन पे, सो दैट शॉट इज लुकिंग वेरी ऑड। तो देन दे ओपनड अ पेटी, वहां पे एक व्हाइट कलर का सूट था और एक विग थी, तो बोला कि चल सेमी गिरेबाल शूट करते हैं, अनु मलिक के डुप्लीकेट को बोला, शाहरुख खान के डुप्लीकेट को बोला, and But they bro, just shot that it is for 3 days. that was the golden time, right? Yeah. Like early Yeah, late yeah. 90s and early 2000s to mid 2000s, the stuff that these guys were doing across the board, pre-reality show craze was insane. It's stuff that I feel अगर अभी भी तू डालेगा, it'll be great content, like great TV to watch. You know, those small things that they would do across Channel V, MTV was
was damn good. पर ये अच्छा है, 20 But साल बाद लोग तुम्हारे बारे में यही बोल रहा है, यार टेस्ट देख के बड़ा हुआ था अपन, यार उसने सिमी Bro, गरेवाल ये होता है. Like when we did Already? yeah, dude, when we did the tour, people Yeah. come to us and, I started watching when I was in the 9th standard. अब मैं It's like- PhD कर लिया हूँ. तो अभी तो हम लोग उसको पूछते तो अभी फिर 20 साल का है, कहते नहीं नहीं मैं 25 साल का हूँ. ऐसे तो तुम 9th स्टैंडर्ड में अभी नहीं नहीं आई एम वाचिंग यू फ्रॉम SNG डेज. तो Oh, वो वाला पॉडकास्ट देख के वो खत्म Yeah. होके फिर वो टूट के फिर ये देख के फिर ऐसे 10 साल हो गए उसको. अच्छा है, So, nice. I like have you when been- people don't move on. मेरा भी सारा ऑडियंस इज 30 प्लस. yeah, bro. अपने सारे ब्रो आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट उन लोग चले अपने साथ, बिकॉज हाँ. नए हाँ. बंडर लोग को कुछ आइडिया नहीं है. अगर वो मेरा ही पॉडकास्ट देख के मुझे बोलते हैं कि तेरा प्राइमरी जॉब क्या है तो भाई आई एम सो ग्लैड कि अपने जितने 30 प्लस फैंस है जो तब से रहे अपने साथ, वो Yeah, हौसला दे रहे हैं अपने को. थैंक यू टू ऑल हु आर वाचिंग. थैंक यू. Yes. थैंक यू. Actually, yes. बट कम्मा हैव यू बीन ट्रैवलिंग, किधर घूम रहा फिर रहा है कि हाँ यार, घूमने तुम्हें नहीं? पता ही मेरा एक्साइटिंग इंडिया टूर सूरत, मैंने बताया तुम्हें कि इट वाज सो नाइस. नहीं नहीं मतलब ट्रैवल इन द सेंस शो के लिए नहीं, घूमने के लिए. किस शो घूमने के लिए के लिए? ट्रैवल कर? यार अभी हमारा स्टैंडर्ड है, अपन जाते अभी एक फैमिली वेकेशन था हमारा, तो 3 शहर से सब पहुंचे सीधा एक ही जगह है, बैंकॉक. और वहां पे तो यार वो ना कन्वीनियंस एंड चीपनेस एंड या देन एबिलिटी टू ईट और शॉपिंग में तो हम हर जगह अव्वल नंबर. Yes. तो Yes. यूजुअली हम वहीं जाते हैं, बट आई वेंट टू लखनऊ रिसेंटली अभी फॉर अ बिट, एंड Very different vibe than Bangkok. वेरी डिफरेंट वाइब, वेरी डिफरेंट Better tunde kebab. तो वो था, बट वहां पे वही मेरा, लेट मी रीफ्रेज माय थॉट्स. So I essentially from a family vacation point of view, last year has been little hectic. So outside of the tour, I've not had that much time to like go out. So this was, at least we try to do at least one when we go out in a year. तो बेस्ट रही, लाइक और कोई जगह मिलती नहीं अब तो. वो थोड़ा इट फील्स लाइक व्हाट बॉम्बे शुड बी वाला वाइब्स in Yeah. Bangkok now, because that's a very, now I know it at back of my hand, क्योंकि अब वो जा के इतना वो हो गया. But very nice, very convenient. इस बारी लेकिन एक चीज बदल गई. तो इस बारी अपना थाई एयरवेज की फ्लाइट में, तो वहां पे आया, सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये वो. तो मैंने मंगाया, मैंने कोई प्री बुक नहीं करी थी मेरी. तो अब उन्होंने क्या, अब वो थाई एयरवेज की फ्लाइट में मुझे पीस पुलाव विद चिकन नहीं खाने का है. मतलब यार मेरे को लगा था, तो पहले, अब आई हैड टेकन थाई आफ्टर व्हाइल, लाइक 1-2 साल बाद. सब लाइक ये क्या हो गया इनका, फुल एयर एशिया वाइब्स हो गया है. मतलब काफी आई फेल्ट बैड लिटिल बिट. बट हाँ, नॉट अ एक्साइटिंग डेस्टिनेशन पर से, बिकॉज हम तो सारे मरे ही रहते हैं वहां. बट फूड वाइज तो इट्स टू गुड ब्रो, इट इज टू गुड. मतलब उधर जितने भी जगह पे तू जा, जो खाना और अपने पैलेट वाला खाना है, अनलाइक व्हेन यू गो टू लाइक से यूरोप, और उसमें भी अगर तू ईस्टर्न यूरोप चलेगा. आई रिमेम्बर मैं क्रोएशिया गया था, ठीक है, हम वहां बैठे, और दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट यूरोप ट्रिप्स. मैं, मेरा स्कूल का बैच, हम गए 2014 में, और वहां बैठे क्रोएशिया. ओ ब्रो, क्रोएशिया पार्टी प्लेस, ये खाना भी खाते हैं पार्टी के पहले. तो मैंने मच्छी मंगाई, आई मच्छी, और मैं देख रहा हूँ ब्रो, ऐसा लग रहा है चूते ने सीधा पानी में हाथ डाला, मच्छी निकली, फिर ऐसा सब कर दिया, थोड़ा सा नींबू मारा और मेरे प्लेट पे फेंक के दे दिया. चूते मसाला कहाँ है, कुछ मसाला टेबल कुछ. अभी ये वो वाला टाइप का भी नहीं था कि नो प्रोसेस, ये उन लोग वैसे ही खाते ऐसे. ब्रो इसमें टेस्ट नहीं है, तो कुछ मेरे को कुछ चिली दे, तो उसको चिली समझ में नहीं आ रहा है ब्रो. तो हम लोग वहां खड़े थे. पर 2014 में टूरिस्ट इनफ्लक्स भी कंपैरेटिवली कम होता रहेगा ना, बहुत कम था. Croatia right now, what it is, it's blown up, especially for Indian tourists going there. But back in 2014, Game of Thrones. हाँ वही, exactly. और वही था उधर. इनफैक्ट वहां की एक when we had gone to Croatia, there was a tour guide who she does tour guide वाला काम, but her actual job, she was Khaleesi's stand-in. Oh. तो कितने बार देखोगे तेरे VFX शॉट हो रहे हैं,
तो उसमें कुछ कर रही नहीं है खाली सी, देखो दूर से ये थोड़ी अपनी आके एमिलिया क्लार्क थोड़ी खड़ी रहेगी. हाँ. So this girl would come. So उसका इतना पॉपुलर हो गया that that became a thing. That come walk around Dubrovnik, but with the person who was a तो stand-in. वो कॉस्प्ले भी कर रही है क्या? वो तुमको नहीं लेके जा नहीं रही है? नहीं नहीं, cosplay नहीं, वो जीन्स में है. अच्छा. वो खाली सी बन के वैसे नहीं, but अरे ये just तो claim to fame. ये तो बेंचो यहाँ भी कर सकते हैं. मैं शाहरुख खान का बॉडी डबल लेके पूरा मुंबई दर्शन करूंगा कि चल भाई चल ऐसे साथ में करें. अच्छा बोल रहे शाहरुख काफी लंबा है यार, ऐसा स्क्रीन पे लगता नहीं है. मुझे बस ये लगता है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स आया, हमने पूरे टूरिस्ट ने क्रोएशिया की बजा दी, पर यहाँ पे इंडिया हमारे शोज के कारण हमारे शहरों का नहीं हो रहा है. लाइक मिर्जापुर में लोग नहीं मर रहे मिर्जापुर में पॉवर्टी नहीं जाके. यार देखें जरा क्या है यहाँ पे. यहाँ पे मुन्ना भैया एक तो गोली खा के आते हैं वहां से. हाँ, यहाँ पे विक्रांत मासी का मर्डर हुआ था. ये मतलब यहाँ पे जमुना पार जा रहे लोग मिनी टीवी देखने के बाद शो. मतलब कुछ यहाँ इंडियन शोज में क्यों नहीं हो रहा है गाइस? ये तो सोचने की बात है. अपने इंडियन I शो think मूवी का scene है, तू- Jamtara should start a service where you go there and you get to do a prank. You get to do a scam call. scam. और अगर आप सक्सेसफुल हो तो पैसे भी आपको ही मिलेंगे. Yes. बिल्कुल. नहीं, थोड़ा कमीशन सब कुछ. कटेगा ना उनका, एक तो रखेंगे ना वो लोग पर ये 25%. अच्छा नहीं है. टूर जमतारा टूर गाइड में पार्ट बहुत अच्छा आइडिया था, पार्ट ऑफ सर्विस, कि आप तीन अटेम्प्ट मिलेंगे गोरे का चूतिया काटने के लिए. आप इंडियन का फोन करिए उन्हें. मतलब क्या यार, But जबरदस्त. the thing is, imagine trying to book for this type of a tour, calling जमतारा कि तू ये भी श्योर नहीं है कि जो टूर के लिए तू जा रहा है वो सच है कि नहीं, कि कोई तेरा चूतिया काट रहा है. तो bro, this is now the fourth episode जिसमें घूम फिर के हमारी ना जमतारा और स्कैमर्स की बात हुई. I don't know how. हम घूम फिर के हमेशा आ जाते हैं स्कैम. तू नाइजीरिया जाएगा, तेको प्रिंस बनाएंगे and you have to sit and write emails all day. और तू चूतिया बना रहा है अपने फैमिली को ही कि आने दे भाई पैसे. हाँ, बट अपार्ट और कुछ apart from interesting shows हैं हमारे. कहाँ पर जो ऑनलाइन अभी टूरिस्ट भेज सकते Oh, हैं. टूरिस्ट वाले ना. I'm trying to think. इंडियन शो बता एक्साइटिंग कुछ. I really wanted to see Rajasthan after seeing Dahad. Beautifully अब ये- shot landscapes. बट यू नो आई एक्चुअली इन अ गुड वे आई वांटेड टू से भेड़िया देखा है. भेड़िया हाँ, तो वरुण धवन वाला है, उसमें अरुणाचल. ना अरुणाचल बहुत हाँ. बहुत दिखा Yeah, है. yeah. दैट वाज अरे. इंटरेस्टिंग टू सी कि कुछ एक पैसा अलग तो दिखे, हाँ. क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू द नॉर्थ ईस्ट, सो आई डोंट नो उधर कैसा है क्या है. सो इवन वाइकेरियसली थ्रू मूवीज यू गेटिंग टू सी दीज लाइक थोड़ा हटके प्लेसेस मेक्स अ लॉट ऑफ फन. इनफैक्ट हम लोग अरुणाचल की बात करें तो लेट मी टेल यू वन थिंग. यू नो नाउ दैट हैज बिकम द सुपर कार रेसिंग कैपिटल ऑफ इंडिया. Yeah. Bro, Interesting. crazy thing I saw. So, in the last 5 years, the number of millionaires and billionaires in India has gone straight up. Correct. Bombay maybe like I think it's second, third highest in the world or हाँ, something like तीन that, तो right? कॉमेडियन ही सोच रहा हूँ मैं. तीन तो है confirm. हाँ. So अभी ये सबको चाहिए स्पोर्ट्स कार. तो ये सब खरीद के आते हैं स्पोर्ट कार. स्पोर्ट्स कार तू चलाएगा कहाँ पर? यहाँ तो रास्ते नहीं है, खड्डे, मेट्रो, ये वो. तो जितने भी अमीर लोग हैं जिनके पास स्पोर्ट्स कार है, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, वहां से दे आर गेटिंग देयर कार सेंट टू अरुणाचल. ओके, नाउ अरुणाचल बिकॉज of Chinese incursion and all of that, Correct. the development of highways and roadways and all has increased a lot. ठीक Correct. है, तो उनके पास है स्पैंकिंग न्यू हाईवेज अराउंड द चिकन्स नेक जो एरिया बोलते हैं ना, दैट चाइना इज ट्राइंग टू ग्रैब. So Correct. they have north, south, east, west, लंबे highway, and Arunachal has 17 people per square kilometer or something, one of the least in India compared to a Bombay which has 21,000. Yeah. 21,000 लोग हम ऐसे खड़े लगते हैं बॉम्बे में शोल्डर टू शोल्डर, वहां 17 है. तो तू एज अ स्पोर्ट्स कार ओनर यू गेट मैसिव हाईवेज, 17 लोग हैं, so the chance of somebody coming in front Yeah. is negligible. तू वहां जाके अपने 10-10 एक हफ्ता रह के उन लोग गाड़ियां भगाते. Bro, that's become the Wow. scene now. तूने So तो basically- आइडिया दे दिया ये अपने को कि अगर चाइना का इंकर्जन तुम्हें कम करना है तो पूना के सुपर कार वाले लौंडे भिजवा दे उधर प्लीज. नहीं Khamba, my takeaway was चिपकाने का. exactly the opposite. I just felt like China should attack Bombay also. इधर भी थोड़ा रोड पे बन जाए भाई. But let's chat a little bit more about like places apart from Thailand that you visited that you had a lot of fun at. Honeymoon कहाँ गया था? वो यार बता. हनीमून मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी. हम आइसलैंड गए थे. प्रॉब्लम था Oh, कि wow.
प्रॉब्लम ये था कि हम गए थे फेब में एंड स्मिथ हेट्स कोल्ड वेदर, तो वो प्रॉब्लम एज अ गाय आई डिड नॉट फोरसी. Maybe not go to a place that starts with ice. भाई it was warmer Despite the than New month. York. It was warmer than New York in Feb. Oh, So अच्छा. weirdly enough. But देख प्रॉब्लम दो आई. एक प्रॉब्लम तो ये थी कि जब एज अ गाय ये मेरा फुल फक अप कि when girls want to like go on a vacation, they want to look nice and get multiple pictures in different, especially when you are going to Iceland type का खूबसूरत जगह. और वहां पे था -10. तो हमारे पास थी एक पार्का जो हमने खरीदी थी नॉर्थ फेस वाली, ठीक है. आपको हर फोटो में पार्का, हर फोटो में पार्का. 10 लोगों को लगेगा कि उन्होंने पूरा आइसलैंड एक ही दिन देखा है. प्रॉब्लम एक हुई, डे 4 पे हम गए कॉमेडी क्लब वहां पे रेकविक में, और मैंने उसी पार्का के ऊपर गिरा दी कैपुचिनो. तो उसी पार्का पे इतना बड़ा दाग निशान. तो 2 लेवल पे जूत पड़े कि एक तो तुम क्या जगह मेरे को ले आए हो, ठीक है होगी खूबसूरत, बट व्हाट द फक इज दिस, हर फोटो में सेम. सेकंड जो ये स्टोरी ट्रू स्टोरी, इस पे मेरे को स्टैंड अप भी करना चाहिए एक दिन. तो हमने बुक करा एक, वहां पे ना एक पैकेज होता है कि वॉल्केनिक रॉक्स के ऊपर आप ना आपको घोड़े पे बैठा के यू कैन टेक अ वॉक. अब मैं मेंटली सोच रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मरीन ड्राइव पे होता था कि टांगे के ऊपर बिठा के तुम्हें टिक 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 करा देगा एक आदमी पकड़ के 5-7 मिनट, ठीक है. यहाँ पे हम गए, यहाँ पे असली घोड़े, और इन्होंने बिठा दिया हमें कि अब आप ना बस घोड़ा चलेगा अपने आप ही, उसकी टेरेन है, आपको जब भी रोकना होगा ना ऐसे खींच के ऐसे बोलना हो, ठीक है. वेरी अनफॉर्चुनेट वर्ड बट ऐसे हो बोलना घोड़ा रोकने के लिए. हम अब कर रहे हैं टिक 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 टिक, और ये बड़े घोड़े, हमारी गांड फटी हुई क्योंकि कोई नहीं पकड़ रहा घोड़ों को, 10 लोगों का ग्रुप. दूसरी साइड से कोई साइकिलिस्ट आ गए, सारे घोड़ों ने देखे साइकिलिस्ट, घोड़ों को लगा साइकिल हमसे compete कर रहा है. तो घोड़े Oh ने no. मारा, तो घोड़े ने मारा 4th गियर. अब ट्रू स्टोरी, हमारा 10 का ग्रुप था, मेरे सामने थी एक अमेरिकन टूरिस्ट, उसका घोड़ा भागा सबसे पहले, उसके घोड़े को देख के भागा मेरा घोड़ा, मेरे घोड़े को देख के भागे 3 और. मेरे सामने अमेरिकन टूरिस्ट गिरी है छाती पे, Oh no. रॉक्स, वो वॉल्केनिक रॉक्स के ऊपर, मेरी फट रही. मैं जा रहा हूँ स्मिथ का घोड़ा ओवरटेक करके अब मेरे आगे, और स्मिथ की का वेट तो कम है ना, तो आई सॉ हर फॉल ऑफ द हॉर्स. स्लो मोशन. मेंटली मेरे दिमाग में क्रिस्टोफर रीव्स क्रिस्टोफर रीव्स क्रिस्टोफर रीव्स क्रिस्टोफर रीव्स, हनीमून पे गेम ओवर, ठीक है. उसको बचाने के चक्कर में, अब मेरी हाइट लंबी, मैं अपने घोड़े से आई ट्राई टू डू अ फॉल एज बेस्ट एज आई कैन बिकॉज आई हैव टू फकिंग फिगर इट आउट. तो आया तो बड़ा खुदा गवाह फील्स, पर मैं भी गिरा, ठीक है. तो मैं गिरा हूं अपने घोड़े से, 1-2 लोग तब तक और, एंड luckily for her she fell on the side of with Smith. 2 things happened. Luckily she fell on the side which was not on the concrete. Second, किसने बचाया? पार्का. Oof. ठीक है. ओहो क्या बात है. उसके बाद, और obviously यार she was in massive shock. मैं तो फिर भी बच गया. She was in massive shock. Later we found out that American tourist, she had a broken rib. They took her to the hospital. और वहां पे ना वो बहन, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे कि ओह यू आर मैरिड सो लकी, वो हमें हॉर्स शू दे रही, हॉर्स शू की, ये यू आर मैरिड कपल, ये लो हॉर्स शू, इट इज मेंट टू सिग्निफाई लक. और मेरा दिमाग खराब हुआ कि बोल रही है पहले रिफंड दे रिफंड दे. रिफंड दे पहले, तो इतना महंगा. तो This is meant to signify no lawsuit. That is what it's meant to signify. करेक्ट. एंड दे वर जस्ट लाइक कि नहीं देखो ये वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं, तो व्हेन दे सी अ बाइसिकल दे स्टार्ट कंपीटिंग. आई लाइक ऑल दैट इज फाइन, बट तुम ये टूर कर रहे हो तो तुम, अब उनको आदत नहीं है ना, उनको आ गए कहीं से गोरे टूरिस्ट, बहुत फटी थी. तो हनीमून तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा एडवेंचरस हो गया था. बट आइसलैंड बहुत वन ऑफ माय टॉप प्लेसेस टू गो टू, मेरे को जाना है बहुत. वो वाले टाइप के व्यू ऐसा लगता ही नहीं भाई, जो इंडिया क्या बोल रहा हूँ, धरती पे ऐसा लगता है कुछ ये वाले, ये सिर्फ विंडोज वॉलपेपर पे देखा हुआ है, राइट. लाइक it looks fake almost ki everything is Windows 95 wallpaper. And I also want to go now in the summer because they say the landscape changes entirely, and it was so gorgeous in winter also. I thought really like winter, but in the summer, of course, the only thing that sucks is food there. It's one really fun thing I learned about Iceland that reminded me. So there, because the population is so low, right, वहां पे भी वही वाला वो थोड़ा पारसी हिसाब है कि कजन निकल सकता है, ठीक है. तो
people, there's some app, one of our guides was telling us, they have an app that when you're, say, at a bar and you're talking to someone, you're meeting someone, you Oh, can yeah. put in their name to check कि तुम्हारा कोई साला first, second cousin तो नहीं है before things move on. I've What heard would of be this. better if I've it just heard of- if the alarm just rings? No, 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 and you just walk away. Oh, sorry. Proximity sensor. But That's great, crazy. really good country, terrible food, but really good country. They have some amazing thriller shows coming out of Iceland, though. काफी ऐसे noirish space में, because that place already has such a mood कि Yeah. तेरे को कुछ करना नहीं है उसके बीच में. अगर तूने देखा this child gets kidnapped, वो mood देख के तू और हो जाता है कि नहीं भाई बहुत intense है. And even back then also they had started doing that Game of Thrones tour. So they were taking you to locations जहाँ पे show shoot हुआ था. Then I think Secret Life of Walter Mitty भी Ben Stiller की वहाँ पे shoot हुई थी. I think that had come out then. So I Martian remember also. there were some Walter Mitty tours also that were happening. So there was a bunch of tourists who was doing just the film stuff. Like वो बाली में होता है ना Insta tour कि हम आपकी फोटो खींचेंगे. फोटो खींचेंगे. हाँ. Same हिसाब. ब्रो ये वाला आइसलैंड में उन्होंने शुरू कर दिया था बॉलीवुड टूर भी, बिकॉज वहां पर शूट हुआ था शाहरुख का गाना, वो गेरुआ है ना, रंग दे तुम है गेरुआ. देयर आई थिंक ऑन दैट ब्लैक सैंड बीच. और वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है जो देव जस्ट लेफ्ट इट लाइक दैट एज अ. सो एंड शाहरुख और काजोल उसके आगे गेरुआ गेरुआ कर रहे हैं. वो हो गया हिट. पब्लिक पूछ रही ये कौन सी जगह है, काला सैंड है, प्लेन क्रैश हुआ है, शाहरुख नाच रहा है, अरिजीत गाया है, मेरे को भी जाना है. तो सडनली पब्लिक उधर आके वहां पर वो डिमांड करेगी हमको वहां ले जाओ, बिकॉज दैट इज द क्लोजेस्ट कॉन्टेक्स्ट अ लॉट ऑफ द अदर पीपल हियर हैव ऑफ इट. सो मेरे को वो एक खाने वाली स्टोरी एक और याद आई तेरे इससे. एक अगेन सी फूड कंट्री, राइट? So one day we went to this restaurant and we were like, what's today's special? They said, it's this fish habit. हमने कोई नाम भी नहीं सुना था, खा तो लिया हमने. उसके बाद हमने फिश का नाम गूगल किया, पहली चीज आई endangered species list. मैंने कहा तुम today's special करके बेच रहे हो. उन्हें no fucks given. उनका it's like Japanese people with sharks कि हाँ ठीक है आ गई देख लेते. but I think in Iceland they do that whaling also, right? Which is that yearly thing where मैंने is it or somewhere else in Scandinavia? Japan, maybe Scandinavia में होता है. I didn't see, but the one thing which was gorgeous, it was somewhere in the north of Iceland. I don't remember where exactly. I'll have to check. But they take you to see the northern lights, right? So they took us to this place where literally you could hear the orcas ka sound. Oh wow! In the distance, because it's pitch black. It's absolutely quiet. Like you're the only one there. ठंड में बस hot chocolate पकड़ा देते हैं तुम्हें कि hopefully light दिख जाए तुम्हें आज. तो 3 घंटे बैठ रहे हो, but absolutely stunning. Like did you see the Northern Lights? हाँ जी. Did you see? Did you see it? No. So both times we went. So if you pay once, they take you twice. Yeah. So they anyway have a meter reading कि आज probability कितनी है. And उन्होंने पहले बोल दिया था कि guys वो कुछ 2.5 या पता नहीं क्या बोला था. तो very rarely. So the only thing we saw was, we didn't see it full blown. We saw like, how to say it, जैसे अपना हवा में रॉकेट नहीं दिवाली पे छोड़ते जो ऐसे करके जाता है. You could see it twice like that, like a green, but literally. Bro, like, I think किसी ने रॉकेट ही छोड़ा होगा. I think they have one. They have one guy on the side. 4 आदमी भी ऐसे खड़े रखे, हे और कबन. इनको एक्सपीरियंस पता नहीं चलेगा. जमतारा in Iceland. Dude, Kautuk and I didn't get to see it when the reading was 5 क्योंकि clouds थे. Cloud We could cover. see it through the clouds and we couldn't like. He's like, दो it's बार right गए. above us. It's right above us right now, but you can't because there is Yeah. cloud. That guy was so apologetic. हमारा तो था ही 2.5, so we didn't expect it, but they take you out twice, and I think day 2 also 3 or something, whatever it was. So it was very low. But we literally just saw it pass by. वो भी अगर कोई मेरे को बताता नहीं, मुझे दिखता भी नहीं. But फिर बाकी लोग वो हाई एक्सपोजर पे नहीं फोटो खींच रहे होते. Look. हाँ. तो उसमें दिख जाता है. ब्रो और इतने पैसे भर के उधर गए ना, नहीं भी दिखा ना तो तू बोलेगा हाँ दिखा है एक्चुअली उधर. Bro, you know, like sometimes your holiday gets made because of like you catch the right moment between, you know, two political things that happen. I'll tell you what I mean. So wife and I had gone to Sri Lanka. Okay, right after they had opened it after the pandemic. So वैसे भी public come, and right before the political unrest. So everything was perfect. Tourist नहीं था, price कम थे, and like it was gorgeous. And right after that, like
और तू 2-5 आइडिया भी दे दिया रेवोल्यूशनरी को कि क्या करना चाहिए कि सर आप जाओगे ना नहीं। सीधा पैलेस ये प्रेसिडेंशियल पैलेस राजापक्षा स्टॉर्म ना। कर देना But would you rather do that, or would you rather have photographs sleeping in the president's bed going, ये देख, मैंने उसके ऑफिस से बतख चुराया. खम्बा, Dude, this thing needs to be studied. कि जब भी ये overthrow होता है, right? Even right now in the Bangladesh situation, like everyone just storms in and it's like it's the joy. The joy. Bro, I saw a video on that. It comes across revolutions. तो Arab Spring पकड़, जब इजिप्ट में जब चालू हुआ, लिबिया का तू पकड़, श्रीलंका पकड़, बांग्लादेश, it becomes a thing for the people to show कि भाई तूने हम लोग को चूतिया काट के हमसे पैसा लेके हमसे ये करके तू एंजॉय कर रहा है. Now I have regained it back. Even if that means going on your treadmill and doing this and putting a video, I have ब्रो अफगानिस्तान में होता ना, तालिबान आके जिम चले गए, ठीक है, तो उन लोग ने AK-47 लगाया और सीधे लैट पुल डाउन कर रहे. अबे वो बजूका डाला उसने उसके अंदर और मैं बोला बजूका से खींच के कर रहा गन की सेफ्टी ऑन कर, कोई पड़ जाएगा पीछे. पर देख ना, अब देख, अभी आज की डेट में भी हम बांग्लादेश वॉर में जब सरेंडर हुआ था 71 में, हम अभी भी वो फोटो देखते हैं कि पीछे सारे लोग ऐसे देख रहे हैं. अब इसकी सोच 30 साल बाद ये ऐसे अपना पूरा मार रहा है कि इसके बच्चे तो देखेंगे ना, वाह मेरे दादाजी कितने बड़े फ्रीडम फाइटर थे, घर के अंदर से पतंग चुराया इन्होंने प्रेसिडेंट के. मतलब it's outstanding. Even though this thing, na, in America, when they stormed the Capitol, they Yeah. were having a ball, dude. Those guys. they went Dude. full dressed. वो उसने एक ने वाइकिंग Halloween. हैट पहना, एक ने कुछ ये करा, यार खुशी खुशी जा रहे हैं अंदर ब्रो. डूड, एक अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान में एक मॉल खुला था, 3 दिन पहले, 1 सितंबर की बात है. इट्स कॉल्ड द ड्रीम बाजार मॉल. तो इन कराची, so the mall opened and people were so excited because a high level mall, everything in the mall was gone in a day, like all the clothes, everything, and nobody bought it. People stormed the stole. place, broke everything, beat up the security guards and took everything and fucked off from the mall. पूरा मॉल रैंसैक कर दिया. और बेस्ट पार्ट इसकी है, क्योंकि ये कराची है, जैसे ही वो बाहर निकले वहां पे एक और आदमी गन लेके खड़ा हो गया था, अब तू मेरे को दे दे. ब्रो मैंने इस पे डॉक्यूमेंट्री देखी है भाई, उधर तेरे को ऐसे गन मिल रहे हैं. हाँ हाँ. ऐसे ही वो जैसे तेरा मिर्जापुर में देखा है ना, जो देसी कट्टा जैसे बोलते हैं, इट्स मैसिवली रैम्पेंट इवन इन. जब मैं गया था कराची. 2006 में, तब जब मैंने बाल नहीं कटाए थे अपने, तब भी मेरे पाकिस्तानी दोस्तों ने बोला था, दे वर लाइक डू नॉट, दिस इज 2006. Then गया they हुआ है? tell me, हाँ, I've been to Karachi. So Oh, then wow. then they told me, do not take your phone out. Like phone snatching and this theft was an issue then. Now it's just with phones becoming more high end, guns becoming more prevalent, it's become even worse from what I hear. But ये तो तब भी 2006 में मुझे बोला था जेब से बाहर फोन नहीं निकालने का. Luckily I was around with people also, so it was like I felt quite safe there at that particular point in time. अब तो बुरा हाल होगा, for all you know, at least from what we've heard. But हाँ, that's not a quote unquote. मेरे को ना सबसे फनी बताऊं क्या लगता है, ट्रैवल स्टोरीज में वो हर हफ्ते में ना रेडिट में एक कहानी आती है कि this German tourist wanted to go to this unexplored location, then they got beaten up and robbed. I'm like, what the fuck did you expect? Like, Yeah, It's unexplored for a reason. there is a term na for it where this kind of travel is Stupidity. called. No, no, but उसका actually dark travel or dark tourist or something like that. कुछ है. It's called कि तू voluntarily जाता है places where War zones any and person, stuff, war zone, exactly, तेरा उधर unrest चल रहा है, ये चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, तो उसके बीच में जाना है तेरे को लेके, भाई यहाँ सिविल वॉर चल रहा है, तो चूतिया तू क्यों जा रहा है सिविल वॉर में? Cool points. No, and just the probability, like there's billions of us. There has to be a small percentage of the population जिनके लिए ये करना काफी नहीं है. Actually, Correct. this is a question to all of you. If you had to choose to become a dark tourist, which war-torn country would you go to? Oh, hard. My God. Hard. We properly replaced Neville. हाँ, the darkness of Neville not being here has been replaced. No, but नहीं, ये I tell you, as a tourist कहाँ जाना चाहोगे? मैं Afghanistan. I actually want to go to Afghanistan because just having seen the number of documentaries and this and that,
इतना सब देखा हुआ है, ऐसा लगता है कि अभी चले जाऊंगा तो अरे अरे तोरा पोरा है, इसके बारे में तो बहुत सुना हुआ है, अरे हिंदू कुश माउंटेन, अरे ये तो अच्छा है। बट जस्ट इन जनरल आई एम क्वाइट फैसिनेटेड बाय दैट कंट्री। बट कभी गांड में दम नहीं था कि चल भाई जाए, बिकॉज आई सॉ देयर इज एन इंडियन गाय, ओके, हु आई थिंक हिज नेम इज नोमैड शुभम, उसके व्लॉग्स आने लग गए, ठीक है। डूड आई एम insanely impressed by this dude. If you see, you know that he doesn't have the correct means that many of us have. Or when he started, he didn't have the means, the contacts, the the confidence to speak or have the equipment necessary. तो उसने कैसे कैसे करके बना दिया है। अभी वो बंदे के बहुत सारे फॉलोअर्स, आई थिंक मिलियंस में है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट टू स्टिल गो, एंड ही हैज शॉट वीडियोस इन अफगानिस्तान वेयर उधर लोचे हो रहे हैं, and he is still there, but he has not gone as dark tourist. He has gone as ये हमारे भाई है, अभी इन्हें हमको लिव दे दिया है, मुझे बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, लेकिन उधर तेरे को गन की आवाज सुनाई अब उसको किसने रोक दिया है, तो ही सेज अच्छा अभी मैं ये बना रहा हूँ व्लॉग, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते, आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दर 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 दर, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वहां पे कमेंट्स में लिख रहे भी होंगे लंदन में रहता है तो ही इज ऑलरेडी मेरा तो चल ही रहा है डूड, मैं आधा तो जल्दी आया हूँ, फिर सोच के अरे यार अपर्णा यहाँ पे अकेली, आई हैव टू कम बैक फास्टर, लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन डूड। हाँ, सेंट्रल लंदन इज, हमने अफगानिस्तान से इक्वेट कर दिया, तो इसके भी पॉइंट at one point, you know, what was happening was I was feeling safer that so I'm near a lot of football pubs, stadiums. I was feeling safer that she is around football fans rather than because those are actually like if you go there and if I just wear the club t-shirt, they will welcome you, they want you to come and enjoy stuff with them. Correct. As opposed to this, they are more welcoming as a group of people. This is my experience living in this area right now. Bro, you know, North Korea would be fascinating to go to. They've just opened up. Kautuk, they've just opened up. अभी एक Reddit पे आर्टिकल पढ़ा था मैं, मास टूरिज्म उन्होंने खोलना स्टार्ट कर दिया है कि इकोनॉमी तो बढ़ गई है ना उनकी। Yeah, but तो via China. But I don't know if it's tourism or an immigration drive. I can't tell. Yeah. अरे who was और फोर्स लेबर, और फोर्स exactly. लेबर, तू अंदर आया, तेरे को धर लिया, तू क्या बोलेगा। मैंने कल न्यूज पढ़ी, वहां पर फ्लड्स हुए, नॉर्थ कोरिया में फ्लड्स हुए, तो फ्लड्स में लोगों की जान चली गई, उनकी जान नहीं बचा पाए, इसलिए किम जोंग उन ने 25 लोग को मार दिया। What? Who are responsible for controlling the flood? उन्होंने किया नहीं, responsible controlling the flood. नेचुरल कैलामिटी तूने कैसे नहीं रोकी, गोली मार दी, 25 लोग को मार दिया उसने, क्योंकि थोड़े लोगों की जान उन लोग नहीं बचा पाए। तो नॉर्थ कोरिया की दो जबरदस्त चीजें हुई हैं जो मुझे लगता है इंडिया को एक इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, हीलियम बलून्स के अंदर ना कचरा डाल के दूसरी साइड फेंक रहे हैं। सेकंड, जीक्यू का आर्टिकल था ये गूगल करना, ये बहुत मजेदार है, कॉटो विल रियली एंजॉय इट। देयर वाज सम नॉर्थ कोरिया में फिल्म फेस्टिवल दैट हैड हैपेंड, 2016-17 की बात है, जहां पे इंडियन मूवीज स्क्रीन हुई थी, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में and one of the films that was screened was Sing Saab the Great, ठीक है, तो सन्नी देओल वाली। तो मेरे को ना तब से बस मेरे दिमाग में विजुअल है नॉर्थ कोरियन लोग Sing Saab the Great देख के क्या भोसड़ा हुआ होगा उनका, what the fuck is going on in this, what is this universe। तो एक दिन ऐसा कुछ अपन फिल्म बनाते हैं कुछ और नॉर्थ कोरिया सीजन 4 लिख के अपन नॉर्थ कोरिया लेके जाए, मजा आया थोड़ा। ब्रो, नॉर्थ कोरिया में इमोशनल अत्याचार भेज देते हैं भाई। नॉर्थ कोरिया में टेम्पटेशन आइलैंड बनाएगा, आदमी के सामने बस एक फ्रूट रखा रहेगा। बम्बा, नॉर्थ कोरियन टेम्पटेशन आइलैंड इज कॉल्ड साउथ कोरिया। या उधर भी होस्ट करने के लिए प्रवेश राणा पहुंच गए। अब हमारे को वीजा नहीं देंगे नॉर्थ कोरिया का, शिट यार। ओह शिट यार, ओह नो, मिस हो गया यार। चलो कोई, व्हाई डिड दे मेक इट टफर फॉर मी टू गो टू नॉर्थ कोरिया? क्या पता, नहीं तू सच बता, अगर ये तो पहले में पास्ट में वो कर चुका है ना, किम जोंग उन ने कोई जर्मनी का कोई बहुत फिल्म मेकर था whose work he loved, और उसने कहा था कि मेरे लिए आके एक पिक्चर बना, कुछ उसको इनवाइट किया था कि तू ऐसे मेरे फेस्टिवल का गेस्ट बन, फिर उसको उन्होंने हॉस्टेज पकड़ लिया था और 10 साल तक छोड़ा नहीं था, तो ही वाज फोर्स्ड टू मेक प्रोपेगेंडा फिल्म्स फॉर देम।
तो अपन भी ये ऑफर कर सकते हैं सर्विसेज कि किम Scripted सर Forced reality. to do comedy. स्टैंड अप सारे साउथ कोरिया पे जोक्स तो हम जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया में, गाइस व्हाट्स द प्रॉब्लम विद अंधेरी यार, यहाँ पर इतने ट्रैफिक. नहीं नहीं, वो अलग होएगा. गाइस व्हाट्स द डील विद स्क्विड गेम गाइस. वो कुछ कर सकते हैं अपन, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं इंडस्ट्री की. तो यहाँ पे तुम्हें पता ही हालत, एंड सेंसरशिप भी सेम ही है. हाँ, तो हमको आदत तो है ही लिखने की वैसे. आदत तो है ही, ऐसे गोल मोल करके कर लेंगे कर लेंगे. Oh fuck. But ये होता है ना, like it's so important, like because when you travel to different countries, you don't know cultural things about that Yeah. place. कैसे क्या बोला? I'll give you an example. अगर तू इजिप्ट में है and you ask for salt during a meal, is considered offensive. No, but Yeah. इजिप्ट में ने बस लॉजिक तो नहीं दिया भाई. इधर सिर्फ आई एम ऑन linkedin.com जहां पर ये आर्टिकल है जिसमें Yeah. अबे तो उन्होंने बताया नहीं भाई. नहीं कुछ बताया नहीं है. No, it's an so insult to the it's a flavoring. chef. It's an insult to the Oh. chef. That you're implying that the food was not good. But yes, if you don't put salt, then I am It's not implying good. that the food is not good because without salt I can't taste. This is reminding me of that बाजीगर में सीन याद है जब भी वो दिनेश सिंह को ऐसे मिलने आता है और उन लोग वो चाय बना रहे थे जॉनी लीवर, लेकिन वो नमक वाली चाय बना देता है, शक्कर के जगह पे वो नमक डाल देता है. अमीर और लोग की ये- चाय ऐसी होती है. ऐसे थे पिज्जा फटाफट. Okay, so in South Korea, you're not supposed to write a person's name in red ink Yeah. because that is reserved for the deceased individuals. तो अगर तूने ये लिख के दिया, कहीं गलती से किसी तूने पेन मांग के लिख दिया, like this is bad मर- luck. मर गए. मर गए. मर गया है. And China में red is lucky, ना? Yeah, For them it's a symbol of prosperity. yes, it is. Bro, my Bro, बोल गौतम. I was just saying कि my homework was very prosperous in China. No, I found out this one thing where, like, you know, we were talking about Scandinavia, right, earlier. So Finnish spa is actually well known all over the world, right? कि most of the Nordic countries, for them, saunas are where, हाँ, saunas is a big thing because एक तो भैंसो इतनी अच्छा. ठंडी है बाहर, कहाँ तो गर्मी क्या चाहिए, करोगे, हाँ. ठीक है. But culturally, they do a lot. It's good to do meetings, informal meetings in saunas. Yeah. अबे तू अभी क्यों जा रहा है सौना चूतिया. अरे लिटरली मैं रोक नहीं पा रहा हूँ. तुम लोग कंटिन्यू करो. 2 minutes. ये रखना. हाँ ये course, रखेंगे. of course. इससे अपन एपिसोड एंड करेंगे. उसने कहा फिनिश स्पॉना से याद आया, मैं भी जरा मैं भी जरा मूत के आता हूँ. But so people do like informal meetings, like it's normal to go to It is the their spa. smoke break. It is a smoke break, correct. But one change over and above that not many people know. So जब भी हम लोग हनीमून पे गए थे, मैं और निकिता, we were in north of Italy in the Dolomites. तो वहां पर एक resort था which had a Finnish spa, Okay. right? तो we've gone, अरे spa करेंगे, मैं ठंडे ये वो. Correct. उस पे what you don't realize is that clothes are optional. The rule is नंगेश. Yeah. उधर कोई तो हम लोग उधर बैठे और सडनली कोई आ जाता है ऐसा, हम वी लाइक ओ शिट, ये अपने को तो आदत नहीं है ना भाई देखने की. ये it's Correct. culturally it's little odd for us, but for them it is very normal. In fact, अगर उन लोग नंगे बैठे और तू बहनचोद अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ गया ना, तो वो देख के बोलेंगे अबे ये क्या कर दिया तूने. वो उल्टा है, वो तेरे को देख के टर्न ऑन हो रहा है कि ओ इसने शॉर्ट्स पहना हुआ है. ओ वाह व्हाट अ इलास्टिक. वो तो सिचुएशन ही फ्लिप है तेरे लिए. मेरे को ये वाला somehow ये वाला मेरे को इतना फियर नहीं हुआ. ये आइसलैंड में भी था, like obviously like because it's common showers and shit like that, but then there you're just like whatever. But I also feel कि because other people don't make you feel awkward. That's the thing. It's that sense of space. Like for example, in Netherlands, it is very common to leave your blinds open. अपने कैसे अभी मैं 17 माले को फिर भी खिड़की बंद नहीं कोई दिखेगा, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये वो. वहां पर your houses are on the eye level ground floor and it is open. So a lot of times when people ask that why the fuck do you not want privacy, so they're like no, we value and we like our privacy. We trust other people अरे बाप to रे. not be fucking
because that is how much sensor space they have. Till But they are you seeing encounter, are you seeing the fundamental issue? yeah, till you Trusting encounter other a group people. of, but that trusting other Dutch people who are culturally sensitive of this, they don't know the 20 people Punjab Kesari tour that is coming there. You know, थॉमस कुक के 20 लोग का, अरे क्या घर के अंदर देखने तो दे. I can imagine myself being this person 10 years later. कि बता ना Yeah. 2 BHK का कितने का इधर? कितना, अरे भाई घर तो अच्छा लग रहा है एकदम. Vitrified tile है, vitrified. Vitrified. आ सही गया है. आ गया आदर आ गया. हाँ हाँ. कैसा था सोना? So, dude, हाँ, तो सोना तो अच्छा. तो, this is one thing that I found about Bulgaria, where Bulgarians gesture no by lifting their chin upwards, and their yes is this. Oh. I want to see a Bulgarian get into a transaction with an Indian. Are you okay with this? What about you? सर एक मिनट, आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज. आप हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? वो पूछ रहा है बहन, जो तू हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? I want We to are see sis- a Bulgarian. I have not seen one. Transaction is much later, but sure. I don't know. होगा. चलो इसी उम्मीद पे कि एक दिन गम्बा को बल्गेरियन दिख जाए, हम खत्म करते हैं आज का एपिसोड. ब्रोस्की, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thanks, buddy. जाने A के lot of पहले, fun. यू वांट टू प्रमोट एनी ऑफ योर शोज वोज, कभी किधर क्या हो रहा है, तेरे लिंक डाल देंगे. तो टिस आर्मी के लिए जितने भी घर पे इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, अक्टूबर एंड आई एम टूरिंग लंदन, डबलिन, ग्लासगो, बेसिकली जहां पे भी देसी रहते हैं, एक्सेप्ट स्लाव नहीं आ रहा मैं वहां पे. नहीं बिकता टिकट. तो बाकी ऑल सिटीज लिंक इन ऑन माय इंस्टाग्राम बायो. Yeah, and link also down here. हमारे भी टिकट ले लो, हम अभी आ रहे हैं. By the time this episode comes out, we'll be only 10 days away from the TIS Europe tour. So please, Amsterdam, Berlin, London, get your tickets. और Best of luck, memberships. Thank you, bro. Membership, merch, सब कुछ नीचे, तो उसको क्लिक कर लो. Once again, Khamba, thank you so much, bro, for joining us. Thank you, buddy. Hopefully 5 साल के बाद नहीं मिलेंगे next time. हाँ, नेक्स्ट Yeah. तू मेरे को बुलाएगा एपिसोड नंबर 487. क्योंकि उस दिन साउंड खराब हो गया था. ठीक है. But मिलते हैं soon. Have a good one. Okay, I'm gonna bounce. See you. Bye. All right, guys. अभी बचे 3 ही, and that's the end of this episode of the Internet Set. So we were discussing a whole bunch of things with Khamba, and बस अभी डिस्कस कर लिया. अभी जाने का टाइम हुआ है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंगेजमेंट, शादी सब कर लो. बेल आइकॉन दबा लो, और हम आपको मिलेंगे जल्दी, सुन. एंड या टिकट ले लो, शो के लिए आ जाओ, एंड we'll see you guys soon. Until then, it's goodbye, take care, टाटा, सलामेश. Oh, नहीं. Okay. 5, 4, 3, 2, Keep this 1. in. Go. अबे यूगो, तू बात कर रहा था. Sounds good. Oh shit. अरे रुक जा, मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ. एक सेकंड. हाँ.